One is born with confidence. They acquire it, they develop it. Because confidence is just like any other skill. The more you practice, the more you become better at it. Let me tell you a story. When I was a kid, I always wanted to be the center of attraction. वो center of attraction जहाँ पे लोगों को मेरे साथ conversation initiate करना है, जहाँ पे girls like me, people wanted to be around me. I always wanted to be in the limelight. There was one fictional character of the Doraemon show, Deki Sugi. I always wanted to be like him. Q. Because he has everything at that time what I wanted. He was popular at this school. He has the limelight at this school. He was good at studies and sports. Girls like him. People wanted to be around him. And in conclusion, he was not like 99% of other kids. And the sad part is, मैंने अपनी 80% of the school life को completely opposite spend किया है. क्यों? Because I was not confident. I was not confident because I was out of shape, जिसके वजह से I was not that good at sports or anything, any physical activities. I was not confident to speak to any girls. मेरी social skills, मेरी communication skills was fucked up. I was not confident enough to speak in front of the people. And in conclusion, I just became like any other kid at any school. So, मैं तुम्हें एक कंप्लीट रोड मैप के साथ गो थ्रू कराऊंगा, एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर जो मेरे अंडर कॉन्फिडेंट वर्जन को एक कॉन्फिडेंट वर्जन में कन्वर्ट किया है. राइट? द मोमेंट मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा एंड वंस आई वाज डन विद माय बोर्ड्स, I completely changed myself. I became a real life Deki Sugi who is confident. People wanted to be around him. Girls like me. People are starting initiating conversation with me. Everything. I became a real life Deki Sugi. And मैं तुम्हें वो एक complete road map के साथ go through कराऊंगा. एक like what should be your first step से लेके तुम्हारा आखिरी step क्या रहना चाहिए. एक proper step by step structure. So the first step is be in good shape. You must have heard this quote, right? It is shame for a man to die without knowing his own physical potential. And if you're in your early 20s and अगर तुम्हारे पास six pack नहीं है, if you don't have your own six pack, then it's a fucking shame. It's a shame. I don't know like what happened to the kids of my age itself. They are 16, 17 and 18. And they are just living their life like a fucking douchebag with no mission, with no purpose. And being at good shape is the best thing you can ever do in your age itself. And the moment तुम workout करना start करते हो and the moment you start getting in shape, so तुम्हारे साथ दो चीजें होंगी. First, you are going to surpass 99% of the man in your area, in your field. And second, you will look more confident and you will feel more confident. क्यों? अगर तुम्हें अपने बारे में अंदर से अच्छा फील होता है, then वो directly तुम्हारे personality में showcase करता है. That's why you will look more confident and you will feel more confident. But wait, Rishi, I understand that being good shape is important for me. It's a good thing. But I'm just a kid. I don't have money to buy that gym membership. And body तो सिर्फ जिम जाने से ही बनती है, right? Shut the fuck up, bro. It is just an excuse which you are giving to yourself. But the truth is, you are too lazy to get out of your fucking bed. Yeah, it's just an excuse जो तुम अपने लिए दे रहे हो. Instead, you're just a fucking lazy loser. That's it. Look at this picture right now. I was 16 जब मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया था एंड उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे टू बाय दैट जिम मेंबरशिप एंड एट दैट टाइम मैंने उस टाइम पे एक्सक्यूज नहीं दिया दैट बॉडी तो सिर्फ जिम जाने से ही बनती है, राइट? इंस्टेड आई फॉलो अ सिंपल वर्कआउट रूटीन जो रूटीन तुम फॉलो करोगे, विच इज योर पुश पुल लेग. मंडे को तुम पुश करोगे, ट्यूसडे को तुम पुल करोगे एंड वेडनेसडे को तुम लेग्स करोगे एंड ये सेम तुम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को फॉलो करोगे. पुश में तुम अपने चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स को टारगेट करोगे एंड पुल में तुम अपने बैक और बाइसेप्स को टारगेट करोगे एंड लेग्स में तुम अपने एब्स एंड लेग्स को टारगेट करोगे.
दैट्स द थिंग। एंड अगर तुम्हें मेरी रिकमेंडेशन चाहिए कि तुम्हें कौन से कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करना है फॉर स्पेसिफिकली पुश पुल लेग, देन यू कैन फॉलो नेक्स्ट वर्कआउट। जस्ट यूट्यूब में जाके सर्च करो पुश पुल लेग नेक्स्ट वर्कआउट, दैट्स इट। सेकंड, learn how to be on the limelight. I understand that you want to be that center of attraction. I understand that you want to be on the limelight, but you are too afraid. And believe me, it is the single thing that I regret the most. And be on the limelight is the most easiest thing that you can ever do. And believe me, अगर तुम्हें limelight में रहना आ गया, it's going to do wonders to your confidence level. क्यों? क्योंकि you won't be getting nervous in front of hundreds, thousands of people, and तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उस टाइम पे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं. And the second thing is, you will look more confident and you will feel more confident. So learn how to be on the limelight if you want to increase your confidence level. Third, improve your social skills. लोगों से बात करने में डर लगता है, right? Fear of speaking है. And as I said earlier, तुम्हारा डर तुमसे तब तक के नहीं हटेगा जब तक कि तुम उसके टुवर्ड्स एक्शन नहीं लेते, करेक्ट? सो अगर तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए? लोगों से बात करना. जस्ट टॉक टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, स्पेशली टॉक टू गर्ल्स. क्यों? क्योंकि तुम्हारी फटती है लड़कियों से बात करने से. That's why talk to as many girls as possible, talk to as many people as possible. Doesn't matter वो senior है, junior है, आया दीदी है, प्यून भैया है, गार्ड भैया है. Just talk to them and start initiating conversation with me. हाय बोलो, हेलो बोलो, कॉम्प्लीमेंट करो, थैंक यू बोलो, वेलकम करो. एंड अगर तुम्हारे क्लास में बैंटर हो रहा है, फन हो रहा है, टीजिंग हो रहा है, देन एंगेज इन दोस कॉन्वर्सेशन, इनिशिएट करो वो कॉन्वर्सेशंस को. क्योंकि यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो तुम्हारे सोशल स्किल्स, तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल एंड तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स को लेवल अप करेंगे. एंड बिलीव मी, अगर तुम सिर्फ ये एक चीज को डेडिकेटली एक मंथ कर लोगे, यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर द पर्सन यू बिकम. क्योंकि तुम्हारी ऑरा डिफरेंट होगी एंड पीपल वांट टू बी अराउंड हिम. Why? Because you will be that fun guy जिसको लोगों के साथ बात करना पसंद है एंड लोगों को तुम्हारे अराउंड रहना अच्छा रहेगा. Just do this one thing to improve your social game and your confidence level. That's it. Fourth, do use of confident body language. That's it. जो तुम्हारा confidence level है उसको पता है 90% कौन होल्ड करता है? तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, and 10% is your verbal game. That's it. So मैं तुम्हें कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज हैक्स प्रोवाइड करूंगा जिसके वजह से नॉट ओनली यू आर गोइंग टू शोकेस कॉन्फिडेंस, बट जब भी तुमको एक पर्टिकुलर रूम में एंटर करोगे, पीपल आर गोइंग टू सेंस योर प्रेजेंस इन दैट रूम. फर्स्ट, बी अ फ्रंट सीटर. आई अंडरस्टैंड दैट मोस्ट यंग मैन डोंट हैव द फकिंग बॉल्स टू बी अ फ्रंट सीटर. क्यों? बिकॉज दे आर अफ्रेड कि अगर हम फ्रंट सीट में बैठेंगे तो जो भी स्पीकर रहेगा, जो भी टीचर रहेगा, उसका फोकस तुम पे आएगा, तुम उसके सेंटर ऑफ अटेंशन बनोगे. एंड अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछा एंड तुम गलती से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, देन लोग क्या कहेंगे, राइट? यू आर अफ्रेड. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, तुम्हारा डर तुमसे तब तक के नहीं हटेगा जब तक कि तुम उसके टुवर्ड्स एक्शन नहीं लेते, राइट? सो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे स्कूल में या फिर कोई भी इवेंट हो रहा है या फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, और इवन इन योर फकिंग क्लासरूम, बी अ फ्रंट सीटर. Why? Because 90% of the people are afraid to be a front seater. And that's why तुम्हें वो करना है. क्यों? क्योंकि जो चीज 90% ऑफ द लोग नहीं कर रहे हैं एंड तुम करोगे वो चीज को, तो तुम डायरेक्टली वो कॉन्फिडेंस को शोकेस करोगे. यू विल बी डायरेक्टली शोकेसिंग दैट कॉन्फिडेंस and you will be dominating that room. Second, learn how to practice eye contact. You must have heard this quote, right? You can look into person's souls by directly looking into their eyes. And मैं eye contact के बारे में उतना डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि तुमने हजारों करोड़ों वीडियो देख लिया that why eye contact is important. Why? Because it directly indicates more confidence. And secondly, it makes you more trustworthy and लोगों को तुम्हारे साथ conversation में engage करना, initiate करना पसंद आएगा. And that's the power of eye contact. Third, walk 25% faster. I know you never heard of this one thing, but walking 25% faster actually makes you look more confident.
बट क्यों? Because you look like a fucking CEO, man. Who knows where he is going? He knows what he wants and he's going to get it. And lastly, he's not here to waste any fucking time. That's why. So walk 25% faster and just showcase more confidence and just radiate more confidence. That's it. Just do it by yourself and तुम देखोगे कि लोग तुम्हारी presence को feel कर रहे हैं रूम में. That's it. Fourth, speak up. आई नो तुम एक ऐसे सिचुएशन में फेस किए हो जहां पे तुम्हें अपनी थॉट्स देना था, अपनी ओपिनियन देना था, या फिर तुम्हें वो क्वेश्चन का आंसर आता था एंड तुम्हारे मेजर ऑफ द क्लासमेट्स को वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, बट यू फेल्ड ऑन गिविंग दोज ओपिनियंस, यू फेल्ड ऑन गिविंग योर थॉट्स एंड तुमने उस टाइम पे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. क्यों? बिकॉज यू वॉज अंडर कॉन्फिडेंट. तुम सोचने लगे दैट क्या होगा अगर मैंने ये क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा, मेरी बेइज्जती होगी, लोग मुझे गधा कहेंगे. यू स्टार्टेड केयरिंग ऑन पीपल ओपिनियंस एंड दिस इज द वन थिंग दैट आई लव द मोस्ट, राइट? दैट केयरिंग मेक्स यू वीक. रिपीट विथ मी, केयरिंग मेक्स यू वीक. The moment अगर तुम किसी चीज के बारे में केयर करना चालू करते हो, especially people's opinions and thoughts, it makes you weak. So next time अगर तुम ये same situation face करते हो, do these two things. First, fuck people and fuck people's opinion. And second, be the first one to break the ice, not the last one. Just do this thing and be more confident and dominate that fucking room. Fifth, बी गुड एट वॉट यू डू. आई डोंट केयर अगर तुम स्टूडेंट हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो और यू आर डूइंग एनी जॉब या फिर व्हाट्स योर एज, आई डोंट केयर. बट जो भी तुम कर रहे हो, बी जेन्युइनली गुड एट वॉट यू डू. जस्ट थिंक ऑफ इट, राइट? तुम 90 to 95% ऑफ लोग से बेहतर हो इन योर एरिया, इन योर फील्ड. सो तुम डायरेक्टली वो कॉन्फिडेंस लेवल को रेडिएट करोगे ही, राइट? तुम डायरेक्टली वो कॉन्फिडेंस लेवल को शोकेस करोगे ही. अगर तुम्हें पता है दैट तुम 90 to 95% ऑफ द लोगों से बेहतर हो इन योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, देन यू आर डायरेक्टली गोइंग टू शोकेस दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल. एंड द मोमेंट यू बिकम बेस्ट एट व्हाट यू डू, देन इट इज द मोमेंट तुम्हें उस टाइम पे कॉन्फिडेंस को शोकेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लोग फील करेंगे तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को. एंड अगर तुम स्टूडेंट हो, देन यू डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ बैंटर, फन, टीजिंग में ही अपना टाइम वेस्ट कर देता है. इंस्टेड तुम्हें वो स्टूडेंट बनना है जो बैंटर, फन, बकर, टीजिंग कर तो रहा है, बट ही इज द टॉपर ऑफ द क्लास इटसेल्फ. एंड दैट्स हाउ यू बिकम दैट वेल फर्निश्ड मैन जो हु इज गुड एट एवरीथिंग व्हाट ही डू. That's how you become a well-furnished man. उसे पता है जो भी चीजें वो कर रहा है उसमें वो बेस्ट है. So that's it for the video itself. And do like, share and वो same चीज जो other content creators तुम्हें कहते हैं, subscribe. Thank you.